to Hindi class. Today our chapter is Arjun Singh. Okay. Regarding this chapter, I will show you some picture here. Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Rani Lakshmi Bai. Okay. So we will see here the freedom fighters. Singh Sabdarth. Okay. Dulara. Dulara means cherished. You can say fondling. Dulara, cherished, fondling. Qaumi. Qaumi means patriotic. Freedom fighter. We can say freedom fighter also. Qaumi, patriotic, freedom fighter. Hukm. Hukm means order. Hukm. Hukm means order. Chunni. Chunni means a red color small cloth. We can say shawl, Churidar shawl. We are taking shawl like that. So that is called in Hindi chunni, a red color small cloth. Sakriya. Sakriya means active. Aghana. Aghana means satisfaction. Julus. Julus means procession. Gulam. Gulam means slave. Murchit. Murchit means senseless. We will repeat this, okay? Shabdarth. Dulara. Cherished. Fondling. Qaumi. Patriotic. Freedom fighter. Hukm. Hukm means order. Chunni. Red color small cloth. You can say shawl also. Okay. Sakriya. Sakriya means active. Aghana. Aghana, satisfaction. Julus. Julus means procession. Gulam. Gulam means slave. Murchit. Murchit means senseless. Now we will see the next. We will read the textbook. Okay. Lesson 5, Arjun Singh. Okay. Now we can see here freedom fighters picture. Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Lakshmi Bai. Now we will read. एक था बालक अर्जुन सिंह. वह अपने माता पिता और छोटी बहन का दुलारा था. उसके माता पिता उससे बेहद प्रेम करते थे. छोटी बहन भैया भैया पुकारते नहीं अघाती थी. उनका छोटा सा परिवार प्रेम और आनंद से भरा हुआ था. एक बार अर्जुन बीमार पड़ गया. उसका बुखार बहुत तेज था. माता पिता और बहन सभी उसके लिए परेशान हो गए. माँ ने उसके इधर उधर की चीजें खाने पर रोक लगा दी. उसका मन गुड़ और चना खाने को ललचा रहा था. उसकी छोटी बहन से भाई का दुख न सहा गया. वह चुपके से गुड़ और चना ले आई और उसने भाई को खाने के लिए दे दिया. कुछ दिनों बाद अर्जुन का बुखार उतर गया. भाई के मन में बहन के प्रेम की भावना और गहरी हो गई. एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है. सभी देश भक्तों के दिल में आनंद और उत्साह की भावना समा गई.
देश का वायसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए, इसीलिए उसने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा। वायसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए। बड़ा आया वायसराय, क्यों न निकले झंडे का जुलूस, भाई ने बहन से कहा। बहन ने पूछा, कौन है यह वायसराय? भाई ने कहा, होगा कोई। बहन ने कहा, वह जुलूस निकालने क्यों नहीं देता? भाई ने बहन से कहा, हमारा देश अंग्रेज ने बड़ी हिम्मत से कहा, तब तो हम जरूर जुलूस निकालेंगे, अपना झंडा फहराएंगे, देखते हैं कौन रोकता है हमें। भाई बहन दोनों झंडा बनाने में जुट गए। भाई केसरिया और हरा रंग ले आया। बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बना लिया। दोनों ने मिलकर उस झंडे पर केसरिया और हरी पट्टियां बना दी। नाउ वी विल सी द फर्स्ट दी। नाउ आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट पैराग्राफ। के एक था बालक अर्जुन सिंह। There was a boy. His name was अर्जुन सिंह। वह अपने माता पिता और छोटी बहन का दुलारा था, and he was very fondling of their parent and younger sister. उसके माता पिता उससे बेहद प्रेम करते थे। His parents were loving to him so much. छोटी बहन भैया भैया पुकारते नहीं अगाती थी, and the younger sisters always calling bhaiya bhaiya means brother brother always, and she was not satisfied to call him always bhaiya bhaiya. उनका छोटा सा परिवार प्रेम और आनंद से भरा हुआ था। Their small family was full of love and happiness. एक बार अर्जुन बीमार पड़ गया। Once Arjun became sick. उसका बुखार बहुत तेज था। His fever was very high. माता पिता और बहन सभी उसके लिए परेशान हो गए। Parents and younger sister, they were so worried about him. माँ ने उसके इधर उधर की चीजें खाने पर रोक लगा दी। And mother restricted on him not to take the snacks items. उसका मन गुड़ और चना खाने को ललचा रहा था। His mind was fond to take the gram and the jaggery. Okay, gram and jaggery. उसकी छोटी बहन से भाई का दुख न सहा गया। And the younger sister, when she has seen that brother is very sad because he is not getting any other food like snacks, so she was also very sad to see him. So she could not bear that, and वह चुपके से and silently what she did, we will see next page. भाई के लिए गुड़ और चना ले आई. So what the younger sister done, she bring silently, good means jaggery, chana means gram. She bring jaggery and gram for her brother. Okay. उसने भाई को खाने के लिए दे दिया. And she gave to brother for eating. कुछ दिनों बाद अर्जुन का बुखार उतर गया. After some days, his fever came down. भाई के मन में बहन के प्रेम की भावना और गहरी हो गई. And there was very much love for the sister. Brother was full of love for the sister, and it becomes deep love. एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है. One day the peoples
heard that freedom's Julus means procession. Freedom procession will proceed. The peoples heard this news. सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गई. And all the Indian freedom fighters, they were very excited and happy. At the time there was emotion of happiness, so they were so happy. देश का वायसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए. And the viceroy of the India, the ruler, he don't want to give the order to proceed the procession. इसीलिए उसने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा. So that he gave the order that there will be no procession. वायसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए. After hearing the viceroy order, the Indians became so sad. बड़ा आया वायसराय. Oh, what a big ruler! वायसराय, क्यों ना निकले झंडे का जुलूस? Why there will be no procession of the flags? भाई ने बहन से कहा. Brother told to sister, younger sister. बहन ने पूछा. Then the sister asked, कौन है यह वायसराय? Who is this ruler? Viceroy person. Who is this person? भाई ने कहा. The brother told, ओह, होगा कोई, whatever he may be. बहन ने कहा. Then the sister told, वह जुलूस निकालने क्यों नहीं देता? Why he is not giving order to procession? भाई ने बहन से कहा. Then brother told to sister, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम जो है. Our country is slave of England, Britishers. बहन ने बड़ी हिम्मत से कहा. Then the sister told bravely, तब तो हम जरूर जुलूस निकालेंगे. Then sure we will come out for the procession. Okay. अपना झंडा फहराएंगे. And we will hoist our own flag. देखते हैं कौन रोकता है हमें. Let's see who will stop to us. Who can stop to us? भाई बहन दोनों झंडा बनाने में जुट गए. Here you can see the brother and sister both, they are making the flag. So they together they started to make the flag. भाई केसरिया और हरा रंग ले आया. Brother bring orange color and green color. And sister बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बना लिया. And the sister has given her shawl and she made the flag. दोनों ने मिलकर उस झंडे पर केसरिया और हरी पट्टियां बना दी. And they together they made orange color and green color decorate in that. You can see the decoration here. Okay, children, we read up to here. Now for our next class we will read this page and next page also. So now we will enjoy the video. Okay, watch the video. पाठ 5 अर्जुन सिंह. देशभक्ति की भावना हमारे देश के बच्चे बच्चे के मन में समाई हुई है. इतिहास के पन्नों पर उभरने वाले महान देश प्रेमियों की शक्ति का आधार देश की जनता थी. एक था बालक अर्जुन सिंह. वह अपने माता पिता और छोटी बहन का दुलारा था. उसके माता पिता उससे बेहद प्रेम करते थे. छोटी बहन भैया भैया पुकारती नहीं अघाती थी. उनका छोटा सा परिवार प्रेम और आनंद से भरा हुआ था. एक बार अर्जुन बीमार पड़ गया. उसका बुखार बहुत तेज था. माता पिता और बहन
सभी उसके लिए परेशान हो गए। माँ ने उसके इधर उधर की चीजें खाने पर रोक लगा दी। उसका मन गुड़ और चना खाने को ललचा रहा था। उसकी छोटी बहन से भाई का दुख न सहा गया। वह चुपके से भाई के लिए गुड़ और चना ले आई और उसने भाई को खाने के लिए दे दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन का बुखार उतर गया। भाई के मन में बहन के प्रेम की भावना और गहरी हो गई। एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गई। देश का वायसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए, इसलिए उसने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा। वायसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए। बड़ा आया वायसराय, क्यों ना निकले झंडे का जुलूस? भाई ने बहन से कहा। कौन है यह वायसराय? होगा कोई। वह जुलूस निकालने क्यों नहीं देता? हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम जो है। बहन ने बड़ी हिम्मत से कहा। तब तो हम जरूर जुलूस निकालेंगे, अपना झंडा फहराएंगे। देखते हैं कौन रोकता है हमें। भाई बहन दोनों झंडा बनाने में जुट गए। भाई केसरिया और हरा रंग ले आया। बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बना लिया। दोनों ने मिलकर उस झंडे पर केसरिया और हरी पट्टियां बना दी। भाई ने उस झंडे को खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। भाई ने दाहिने हाथ में झंडा थामा और जुलूस में भाग लेने चल पड़ा। बहन भी उसके साथ जाना चाहती थी, परंतु भाई ने यह कहते हुए उसे रोक दिया कि जुलूस के साथ बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। भाई की इच्छा थी कि उसकी बहन उसे रोली का टीका लगाकर उसी प्रकार विदा करे, जिस प्रकार प्राचीन काल में राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विजयी होने की मंगल कामना के साथ रोली का टीका लगाकर युद्ध के लिए भेजती थी। भाई की इच्छा को समझते हुए बहन दौड़कर रोली, चंदन, दीपक और चावल से सजी हुई आरती की थाली ले आई। उसने भाई की आरती उतारी। उसके माथे पर रोली, चंदन और चावल का तिलक लगाया। भाई ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। बहन ने विजयी भव कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा। वह झंडा लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और बहन दरवाजे पर खड़ी उसकी ओर देख रही थी। कुछ दूर जाने पर सिपाहियों ने उसे रोका, परंतु वह न रुका। सिपाही भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे, परंतु सरकारी हुक्म के अनुसार वे बालक को आगे नहीं बढ़ने दे सकते थे। सिपाहियों ने उसे बहुत डराया धमकाया, परंतु वह कहाँ मानने वाला था। निर्दय सिपाही उस अबोध बालक पर डंडे बरसाने लगे। बालक आहत होकर गिर पड़ा। उसके सिर, हाथ और पैरों में बहुत चोट लगी थी, परंतु उस स्थिति में भी उसने झंडा हाथ से नहीं गिरने दिया। सिपाहियों को भाई के पीछे जाते देख बहन का मन अज्ञात भय से कांप उठा। वह भागते भागते वहां पहुंची। भाई ने झंडे को बहन के हाथों में थमा दिया और वह मूर्छित हो गया। उसने भाई के सिर को अपनी गोद में रखा और सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगी। इसी बीच उसके माता पिता और कई सज्जन उसकी सहायता के लिए पहुंच गए।
उस वीर बालक को लोग अस्पताल ले गए। वह कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया और पुनः झंडा लेकर अपनी बहन, मित्रों और परिजनों के साथ देश की स्वाधीनता के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा।